Okay, so hi, hello, good evening everyone. This is Ritika, your chemistry educator, and we are here at Unacademy's YouTube sessions to have one more very important and very informative session. So before telling you what are we going to study in our today's class, let us know a bit about me. So I have completed my engineering in electronics and communication, and right now I'm here at an academy teaching you all chemistry. Acha, so students, what you can do is you can join my Telegram channel to receive the help in homework or your class notes. और अगर आपको ये जो हमारे सारे सेशंस होते हैं उनके भी if you need notes, you can join the Telegram channels. Will be provided over there, and you can also join the Telegram channel of ICSE and ISC board. तो वहां पर ना you will be staying updated about all the ongoing offers, all the things, all the updates about an academy. So you can join the Telegram channels, and ये जो links है Telegram channels की, they will be provided to you in the description box. And today what are we going to study? As you have already seen, we are going to study about periodic table. और periodic table में हम लोग पढ़ने वाले हैं about the periodic properties, right? तो वो periodic table का जो introduction part है, we have already completed that. We have seen the periodicity, we have seen the salient features of the periodic table, and I hope that you all might have seen that session. If not, kindly go and see those sessions because they are very very important, as you know the starting is completely based on that. Okay, और आज हम लोग start करेंगे with the periodic properties. So let us begin our session quickly. First of all, let us know what do we mean by periodic properties. Okay, अभी periodic properties क्या होती है ना students? If you might have seen the periodic table, क्या होगा कि कुछ properties जो है वो certain elements के बाद ना थोड़ा सा रिपीट कर रही है, वो रिपीट कर रही है या उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली ये कंसिस्टेंसी दिखा रही है, राइट? सो दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज दे आर कंसिडर्ड और दे आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. अभी अगर उसे डिफाइन करना है तो सबसे पहले तो ये रिलेटेड होती है, दे आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो ये हमारी जो भी ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, दे आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. ओके, और ये क्या करती है, दे आर शोइंग रेगुलर ग्रेडेशन. ओके, रेगुलर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, या तो कुछ चीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड और आफ्टर अ सर्टेन एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे कि वो जो प्रॉपर्टीज है वो खुद को रिपीट कर रही है. ओके, सो दीज आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो वर्ड हमने लिया है पीरियोडिसिटी से. Now, what do we mean by periodicity? It is the repetition of properties of elements after a certain interval of time. ओके, वापस से यहाँ पर अगर बात करें कि किससे या किस रीजन की वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो व्हाट और हाउ वी कैन डिफाइन पीरियोडिसिटी? आई एम सॉरी, इट इज डिफाइंड एज repetition of properties of elements after a certain interval of time. अब यहाँ पर one more thing that you need to remember is it is not always exact repetition, similarity देखने को मिलेगी, right? तो या तो repetition होगा या फिर जो properties है उनमें कुछ increase या फिर decrease हो जाएगा. Okay, so either we will be seeing some similarity, we will be seeing some kind of increment, or we will be seeing some kind of decrement. तो ये जो होती है हमारी periodicity, it is known as
and from this we have just learned about the periodic properties, है ना। अब बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। वैसे तो बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें इन योर 10th ग्रेड वी आर हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज विच इज एटॉमिक साइज, जिसे हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। आफ्टर दैट इट इज मेटालिक कैरेक्टर, the third one can be non-metallic character, the fourth is ionization potential, fifth is electron affinity, the sixth one is electronegativity. Okay, so these are some of the properties. Okay, it is atomic size, metallic character, non-metallic character, ionization potential, electron affinity and the electronegativity, right? तो हम लोग इन सारी properties के बारे में पढ़ेंगे. We will be seeing that how are these properties changing when we are moving either down a group or across a period. क्या फैक्टर्स है जो इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं और किन फैक्टर्स के ऊपर ये प्रॉपर्टीज जो है डिपेंड करती है। ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एटॉमिक साइज। अब ना सबसे पहले तो ये समझेंगे हम लोग कि एटॉमिक साइज होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय द atomic size? Okay, just a second. Yeah, now if I talk about atomic size, let's suppose that this is my atom. Okay, ये मेरा एक atom है, and of course we know that there is this nucleus which is situated at the center of the atom, and these are the energy levels or the shells as we say. अब एटॉमिक साइज क्या होगा ना, इट इज द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर होगा यहां से, एंड इट विल मूव ऑन टू द लास्ट शेल। ओके, तो फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज का डेफिनेशन ये हो गया दैट इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द एटम to the outermost orbit. Okay, so this is meant by the atomic size in case there is only one atom we are talking about. अभी ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हम लोग सिर्फ एक ही एटम की बात करें, we might be talking about a molecule also. तो मॉलिक्यूल में एटॉमिक रेडियस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अभी लेट अस कंसिडर दैट वी आर हैविंग अ मॉलिक्यूल. ओके, कुछ इस तरह से इट इज बॉन्डेड. ओके, तो यहां पर भी ऑफ कोर्स विल बी हैविंग टू न्यूक्लियस. ओके, नाउ इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारी एटॉमिक डिस्टेंस है वो हम कैसे मेजर करेंगे, फ्रॉम हियर टू हियर. ये जो हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका हाफ. ओके, सो इट कैन बी डिफाइंड एज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between the combined atoms in a molecule. है ना, तो यहां से यहां तक हम लोग डिस्टेंस लेंगे एंड देन वी विल जस्ट डिवाइड इट बाय 2 टू गेट द एटॉमिक रेडियस. ओके, अब बात आती है इसको मेजर करने की. नाउ सी स्टूडेंट्स, एटम्स जो है ना वो बहुत ही छोटे हैं. Right, they are very on very low level, right? So we cannot use the normal scales like meter, centimeter, millimeter to determine the radius of the atom. तो उसके लिए we need to have special units, okay,
and some of the very commonly used units are angstrom. अभी angstrom जो है ये equal होता है 10 raised to power minus 10 meter. Okay, this is the symbol A naught for angstrom. And next is picometer. तो 1 picometer जो है it is equal to 10 raised to power minus 12 meter, है ना. तो ये हमारे units है which we are using to measure the atomic radius. And the reason being atoms बहुत छोटे होते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर स्केल जो है उनके लिए उनके लिए appropriate नहीं होते. Okay, so I hope you might have understood the definition of the atomic size or atomic radius. अब बात करते हैं कि ये जो atomic size है और atomic radius है ये depend किन factors पर करती है. तो there are two factors जिस पर कि हमारी atomic size, atomic radius depend करती है. The first one is number of shells and the second one is nuclear charge. Okay, तो न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ शेल्स पर कैसे डिपेंड करती है उससे पहले तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय ईच ऑफ दीज. तो नंबर ऑफ शेल तो बड़ा ही इजी है ना. नंबर ऑफ शेल क्या होता है? द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स. Okay, let's suppose we are having 1, 2, 3. तो यहाँ पर 3 shells present है. Suppose we are having 1, 2. तो यहाँ पर 2 shells present है. These are the number of shells. Next आता है nuclear charge. अब nuclear charge क्या होता है students? This is the charge first of all which is present in the nucleus of the atom. Okay, और ये एक positive charge है. Okay, so the positive charge placed or present in the nucleus of the atom is defined as the nuclear charge. अब बात करते हैं that how and why these factors affect the atomic size या क्या changes होते हैं in case of atomic size. The very first is the number of shells. अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा ना, लेट्स सपोज दिस इज माय वन एटम, उसके पास एक शेल है. देन आई एम हैविंग सेकेंड एटम, इट इज हैविंग 2 shells. थर्ड एटम इट इज हैविंग लेट्स सपोज 3 shells. तो नेचुरल है कि जैसे ही शेल का नंबर इंक्रीज होगा, जैसे ही शेल का काउंट इंक्रीज होगा, उसके साथ एटॉमिक साइज भी ऑफ कोर्स इट विल बी इंक्रीजिंग, राइट. सो व्हाट वी कैन से that as the number of shells increase, उसके साथ क्या होगा, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो जाएगी. और रीजन क्या है इस इंक्रीमेंट का? व्हाई इज द एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग? बिकॉज इससे क्या होगा ना, जो हमारा न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट शेल के साथ जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा. So we can say that distance between nucleus and outermost shell increases. Okay, कैसे हो रहा है? अभी हमने देखा था, this is one atom जिसके पास केवल एक शेल है, right? Then we are having second atom जिसके पास 2 shells है. And the third atom, let's suppose it is having 3 shells. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? If you see, न्यूक्लियस का outermost shell के साथ distance ये रहा, then it became a bit increased, it became a bit large, and the third one वो थोड़ा और ज्यादा हो गया. तो जैसे जैसे number of shell increase होगा, न्यूक्लियस का outermost shell के साथ distance भी increase हो जाएगा, and that will lead to the increase in the size of the atom or radius of the atom. Okay, so I hope that this point is clear to you. अब बात करते हैं second, that is nuclear charge.
1 minute. अभी न्यूक्लियर चार्ज एज आई टोल्ड यू ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है. ओके कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियर चार्ज इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल एज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है. ओके अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स. क्या होगा ना, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटम का साइज डिक्रीज होगा. ओके सो वी कैन राइट दैट एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस what it leads to, it leads to the decrement in size of atom. So atomic size decreases. Okay और रीजन क्या है, इसका रीजन है कि अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब कि क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, राइट. एंड व्हाट इज इट डूइंग, इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना. वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है. ओके सो व्हाट वी कैन राइट दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीमेंट के साथ हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है. द रीजन बीइंग द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड बाय न्यूक्लियस with a greater force. अभी क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस पुल करेगा अपनी तरफ तो क्या हो जाएगा, एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा. दैट इज आउटरमोस्ट शेल को है वो अपने पास ज्यादा ला सकता है बिकॉज ऑफ द हायर चार्ज. सो आउटरमोस्ट शेल इज brought closer to nucleus. So that is the reason. क्यों न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीमेंट के साथ एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बिकॉज अगर हमारा ये जो है लेट्स सपोज दिस इज द एटम. ओके एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा. अभी प्रोटॉन ज्यादा हो रहा मतलब यहाँ पर चार्ज भी it is increasing. When this charge is increasing, ये चार्ज ज्यादा फोर्स से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा एंड इट विल बी पुलिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ. और इसकी वजह से एटॉम का जो साइज होता है इट इज श्रिंक्ड टू अ बिट. I hope that up till here the things are very much clear to you. If there is anything that you haven't understood, kindly let me know. अब बात करेंगे हम लोग कि ये जो चेंजेस है ये कैसे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक रेडियस. ओके तो चलिए बात करते हैं. 1 सेकेंड. Okay, so if I talk about the trends in atomic size, first of all let's talk about down a group. डाउन द ग्रुप मतलब जैसे ही हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, व्हाट इज द चेंज दैट वी आर सीइंग इन द एटॉमिक साइज. ओके तो जैसे ही वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम विल इंक्रीज. रीजन क्या है, एडिशन ऑफ शेल्स. सी अब आपको इफ इट्स कमिंग इनटू योर माइंड दैट शेल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके साथ एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है. ओके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है then it should decrease the size of the atom, right? जो अभी हमने पढ़ा है because of the nuclear pull.
लेकिन यहाँ पर क्या है ना, दिस एडिशन ऑफ न्यू शेल, ये जो चीज है, इट ओवरवेज द न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो इसका इफेक्ट, एडिशन ऑफ न्यू शेल्स का इफेक्ट कुछ ज्यादा नजर आता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। और इसीलिए एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप यू विल बी सीइंग दैट द size of the atom is continuously increasing. Okay, sorry. अब बात आती है the next one which is across a period. Now let us see what is the change that we may see across a period. Okay, if I talk about let's suppose the elements of group period number 2. Okay, कौन से elements है हमारे पास? We are having lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine and neon. Okay, atomic number की अगर हम लोग बात करें, it is 3, 4. And talking about their electronic configuration, it will look like 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, अभी इसको कितने shells चाहिए? It needs 2 shells. And with this, every single element over here in this particular period, it requires 2 shells. Okay, तो अगर हम शेल के बेसिस पर देखें तो साइज सेम होना चाहिए, बट नो, एक्चुअली यहाँ पर साइज ना डिक्रीज हो रहा है. ओके, द रीजन बीइंग इज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू द एग्जांपल. अच्छा, अभी हमने बात करी है पीरियड नंबर 2 की. यहीं पर एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट हम लोग लेते हैं लिथियम का, देन लेट्स टेक द केस फॉर कार्बन एंड फ्लोरीन. ओके, अभी लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम इज हैविंग 2 शेल्स. ओके, तो फर्स्ट शेल में इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में इट हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन. कार्बन की अगर बात करें तो अगेन न्यूक्लियस 1, 2. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. एंड द थर्ड केस इज फ्लोरीन. सो अगेन न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल it is having 2 electrons, and the second shell it will be having 7 electrons. 4, 5, 6 and 7. Okay, अब देखिए स्टूडेंट्स, शेल तो सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये सोचेंगे कि जो हमारा एटॉमिक साइज है वो सेम होना चाहिए. पर यहाँ क्या हो रहा है, as the atomic number is increasing, number of protons ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. ओके, अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज होगा, दैट इज यहाँ न्यूक्लियस में जो है एक तरह से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है. अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इट विल बी पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ विथ अ ग्रेटर फोर्स. ओके, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विद अ ग्रेटर फोर्स पुल कर सकता है, then what will happen, it will shrink the size of the atom. Correct? So इसीलिए the atomic size it decreases across a period. Okay, now there is one exception also. हम लोग बात करें फ्लोरीन और नियॉन की, तो यहाँ पर ना नियॉन का साइज इट विल बी बिगर देन फ्लोरीन. करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन. क्या होता है, इनर गैसेस का साइज जो है हैलोजन से बड़ा होता है. व्हाई? बिकॉज इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी वजह से बहुत इनमें जो है स्टेबिलिटी होती है. Okay, and that is why the most of the properties which are shown by these inner gases, they are a bit different. Okay, तो
यहाँ पर ये रीजन है, लेकिन वापस से ये भी है कि जो नियॉन है इसका साइज जो है वो लिथियम से छोटा होगा. Okay, it won't be greater than lithium, but of course it will be greater than the halogens. Okay, तो ये था हमारा very first property, and I hope that everyone might have understood this property. अगर कोई भी confusion है, कोई भी problem है, let me know. Okay, तो talking about special classes, students, you can attend the special classes from the Unacademy platform. क्या करना होगा आपको, डाउनलोड करना है Unacademy Learner ऐप. ओके, और आपके जो सारे फेवरेट एजुकेटर्स हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम देम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, यू कैन एंगेज विद देम थ्रू पोल्स. अभी पोल्स क्या है, इट इज द MCQ टाइप ऑफ questionnaire which is asked by the educators. You can select for correct answer by yourself. You can see the leaderboard, and you can have the access of many amazing things also. Okay, also you can clear your doubts in your live special classes. We are having a chat box feature, so you can just send the image, or you can type your question. And if you want to visit the special classes, you can see the links which are provided to you in the description box. अब बात करते हैं Unacademy सब्सक्रिप्शन फीचर्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट. तो वेरी फर्स्ट फीचर इज यू कैन लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. ओके, आप आराम से अपने घर पर बैठ के यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ ऑल द कोर्सेज. यू विल बी टॉट बाय द एजुकेटर्स एट वन प्लेटफॉर्म, एंड उसके बाद you always have doubt clearing session and answer writing session regularly. अभी answer writing session क्यों important है? Because many times we know, उस टॉपिक के बारे में हमें पता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन where do we get stuck? It is putting our thoughts into words. वहाँ हम लोग ना थोड़ा सा confuse हो जाता है how to write the good answer. तो here we are having those sessions also which will make you ready for your examination. Next is all the study material will be provided to you in the PDF format, और उसके बाद लाइव टेस्ट सीरीज भी you can access. अभी बात करें अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो you can select any subscription plan according to your choice. जैसे कि you are using this 3 month, okay, 2875. You can use my code RITIKACLIVE जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. तो जो रेट पहले 2875 थी वो हो गई 2588. ओके, सिमिलरली फॉर 48 months the rate which was originally 958, it is now 863. So this is how you can have a great variation in the prices. So go for it quickly. हाँ जी, अब there is also one thing, cation. Let us discuss about cation and the size. 1 minute. Okay, sorry. cation जो है, सबसे पहले तो बात करते हैं how it is formed. तो cation form होता है by loss of electron. Okay. Now let's try to understand कि जो cation का size है, it will be larger or it will be smaller than its parent atom. तो it is formed by loss of electron. अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए कम. ओके, लेकिन प्रोटॉन जो है उनका नंबर रह गया सेम. ओके, तो लॉस के बाद क्या हो गया, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा हो गया. And because proton is higher, it will be able to pull the electron towards itself. Okay, और क्योंकि it is able to pull the electron towards itself, तो क्या होगा, size of atom shrinks. So size of atom decreases. Okay, so ये होता है in the case of आयन. अगर मैग्नीशियम एटम की बात करें, मैग्नीशियम आयन की बात करें, तो आयन ऑफ कोर्स इट विल बी स्मॉलर इन द साइज एज कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम. ओके,
नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनायन. अभी एनायन की बात करूं तो कैसे बनेगा? इट इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन के गेन से एनायन बनेगा एंड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स it will be greater than the number of protons. Okay, तो यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, it will be comparatively less, और नेगेटिव चार्ज it will increase, and because of that this is more powerful than this one. Okay, तो क्या हो जाएगा यहां पर? the size of the electrons will be higher. I'm sorry, the size of the anion will be higher because of more electrons. Okay, so I hope this condition atomic size it is completely clear to you all. कोई भी confusion है, कोई भी चीज जो नहीं समझ आ रही है, please let me know. Okay, next बात करेंगे हम लोग second property की, which is metallic character. Okay, अब सबसे पहले तो let us try to understand कि metallic character होता क्या है and how is it changing across the elements. Okay, हमारी periodic table में there are different type of elements. कुछ element prefer करते हैं electrons gain करना, कुछ prefer करते हैं lose करना, कुछ prefer करते हैं share करना. So from all these elements, the elements which have tendency to lose valence electron, और जब वो valence electron lose करेंगे तो they will turn into what? Positive ion. So and form positive ion, that is a cation. इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? They are known as metals. Okay, अब metallic character means how well the element can be considered into the category of the metal, या फिर कितना easily वो जो है अपना outermost electron को donate कर सकता है without any issue. Okay, again हमारी metallic size depend करती है two things पे. First is atomic size and the second one is nuclear charge. Okay, अभी डिस्कस करेंगे कि दोनों जो प्रॉपर्टीज है how they are defining it. Let's talk about atomic size first. Okay, तो जितना ज्यादा हमारा atomic size होगा, so greater the atomic size, उसकी वजह से क्या होगा? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, वो दूर हो गया. जस्ट शो यू थ्रू द डायग्राम. सो फार्दर इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और जितना ज्यादा वो ना दूर होगी उतना ही कम जो है न्यूक्लियस फोर्स लगा पाएगा उस इलेक्ट्रॉन पर. ओके, तो वी कैन से लेस न्यूक्लियर पुल, और उसकी वजह से मोर मेटालिक. अभी ये कैसे हो रहा है ना, इसको समझने का ट्राई करेंगे. लेट्स सपोज हम लोग दो एलिमेंट्स का केस कंसिडर करेंगे. फर्स्ट इज द एलिमेंट विच इज हैविंग लेट्स सपोज 2 shells. ओके, सेकेंड एलिमेंट में हमारे पास वी आर हैविंग 1 2 3 and let's suppose 4 shell. Okay, अब देखिए यहां पर this is the radius and यहाँ पर just double radius है. Okay, let's suppose यहाँ पर हमारे पास 2 electrons है and here also we are having 1 2 electrons. Okay, now as I told you कि यहाँ distance जो है हमारा थोड़ा सा ना कम है, मतलब कि
ये डिस्टेंस जो है इट इज कंपेरेटिवली लेस देन दिस डिस्टेंस। अभी इस डिस्टेंस में क्या होगा ना, दिस न्यूक्लियस ये करेगा फोर्स एक्सर्ट इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर अपनी तरफ पुल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा इट विल बी डोनेटेड अ बिट नॉट वेरी इजीली। ओके, यहाँ पर द रीजन बीइंग इज कि यहाँ पर जो फोर्स है वो थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। बट इफ आई टेक द केस हियर, तो बिकॉज ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन से काफी दूर है, तो ये इतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट इजीली। ओके, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ही न्यूक्लियस से एटम का डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना न्यूक्लियस से एटम का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना इजीली वो एटम जो है, वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियस से एटम का नहीं, सॉरी, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा होगा एंड देयरफॉर इट विल बी डोनेटेड इजीली, और जितना इजीली डोनेट हो जाएगा इट विल बी कंसिडर्ड मोर मेटालिक। ओके, तो आई होप ये चीज यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अभी क्या होगा ना, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ओके, सो वी कैन से दैट इफ वी आर हैविंग great nuclear charge, so greater the nuclear charge, ज्यादा फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स पे, सो ग्रेटर इज द फोर्स exerted by nucleus on outermost electron। और जितना ज्यादा फोर्स वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर लगा रहा है उतना ही ग्रेटर डिफिकल्टी हमें फेस करना पड़ेगा इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा न्यूक्लियस आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर, उतनी मुश्किल से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट होगा या फिर उतनी ज्यादा डिफिकल्टी हमें आएगी। ओके, तो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ आर दीज चेंजेस हैपनिंग अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। वन मोर थिंग यू नीड टू नो स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स the elements which lose electron easily उनको हम लोग बोलते हैं reducing agent। ओके, एंड सिंस मेटल्स जो है बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं, सो दे आर नोन एज reducing agent। ओके, नाउ लेट अस सी द ट्रेंड्स इन दी मेटालिक कैरेक्टर। फर्स्ट बात करेंगे हम लोग डाउन अ ग्रुप। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट थिंग एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। सेकेंड हो रहा है साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज, ये भी इंक्रीज हो रहा है। यस, अब देखो इन दोनों में से जो है एटॉमिक साइज इंक्रीमेंट का जो इफेक्ट है ये थोड़ा सा ना ज्यादा हो जाता है। मतलब कि दिस इफेक्ट और दिस पर्टिकुलर थिंग, इसका जो रिजल्ट होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीमेंट। ओके, तो यहां पर क्या होगा? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ओके, एटॉमिक साइज
इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो एटॉमिक साइज का इफेक्ट जो है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, वो थोड़ा बढ़ जाता है. तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और अगर टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज गुड, देन द एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एज मेटालिक. Metallic nature increases. Okay, so this is the basic thing. Okay, तो जैसे ही we are moving down the group, क्या हो रहा है, हमारा metallic nature जो है increase हो रहा है. Why? The reason is because of the effect of atomic size increment is a bit higher than nuclear charge increment. आया समझ में यहां तक? चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अक्रॉस अ पीरियड. ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है, अक्रॉस अ पीरियड अगर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. और ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबरिंग. ओके, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है. और बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी लॉस्ट इजीली. और जब इलेक्ट्रॉन नहीं लूज हो सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस मेटालिक. ओके, तो इस केस में क्या होगा, एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है. उसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी डिफिकल्ट हो रहा है. ओके, लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट है A एंड देन वी आर हैविंग B. ओके, तो हम लोग जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, सी सबसे पहले तो हमारा जो है साइज डिक्रीज हो जाएगा. ओके, साइज डिक्रीज हो गया यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर मिनट या तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के थोड़ा पास आ जाएगा एंड न्यूक्लियर पुल विल एक्चुअली बी हायर. और न्यूक्लियर पुल ज्यादा हायर होगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगी. ओके, फॉर टॉक अबाउट ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो ये तो जो है मेटल्स हो जाएंगे. यहां से हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होना चालू होगी, दैट इज मेटलॉइड, और ये हमारे हो जाएंगे नॉन मेटल्स. ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स गो. ओके, आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स. अभी हम लोग ना थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट द कम्युनिटी. तो कम्युनिटी क्या है ना, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द एजुकेटर्स जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. To never miss any update from your favorite educator. In fact, आपको सेशन के नोट्स या प्रैक्टिस मटेरियल मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. You can even share your feedback to your educators. So if you want to join my community, you can click on the link which is provided in the description box. And these are the upcoming batches of grade number 10 and grade number 9. Okay, तो ये जो हमारी बैचेस है ऑलरेडी चल रहे हैं. You can enroll yourself here. Hina ma'am is taking your math, Kalyan sir is taking your physics, Manisha ma'am is taking your chemistry, Vani ma'am is taking your biology. Okay, तो आप लोग डेज टाइमिंग्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एंड गो फॉर द सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स. बिकॉज अगर आपको पूरा अच्छे से होल सोल रिविजन, अच्छे से सेशन नोट्स और सब कुछ चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग टू जॉइन द बैचेस. एंड ऑल्सो वहां पर ना स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प हो जाएगी. ओके, एंड ऑल्सो इफ यू सब्सक्राइबिंग फॉर ग्रेड 10, आपको 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड हो रहा है. ओके, नेक्स्ट इज बग्स बाउंटी. तो
तो बग्स बाउंटी क्या है? दिस इज वन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स. अगर आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखे वीडियो में तो यू कैन रिपोर्ट इट एंड ऑल्सो यूल बी गेटिंग अ प्राइज फॉर दैट. ओके, तो ये जो फॉर्म है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन यूज दैट टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट. तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज क्या पढ़ा था हमने. वी लर्नड अबाउट periodic properties. क्या होता है periodic properties? These are the properties which are either showing some gradation, या तो increase हो रही है या decrease हो रही है, या फिर they are repeating after a certain elements. Okay, these are the periodic properties. कितनी periodic properties देखी थी हमने? Atomic size, then metallic nature, non-metallic nature, ionization potential, electron affinity, और लास्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. राइट, आज हमने क्या पढ़ा था? वी लर्नड अबाउट एटॉमिक साइज एंड मेटालिक नेचर. ओके, क्या होता है एटॉमिक साइज? ये होता है डिस्टेंस from the center of the nucleus to the outermost shell. Okay, and nuclear charge क्या होता है? It is the force, or I would say attractive force exerted on the electrons by the nucleus. Okay, it is equal to number of protons. अब बात करते हैं about the changes which are happening. Atomic size जो है top to bottom अगर हम आएंगे तो क्या हो जाएगी? It will increase. क्यों? Because the number of shells are increasing. Of course nuclear charge भी increase हो रहा है, लेकिन shell का increment का जो पार है वो थोड़ा सा ना ज्यादा है. Okay, and from left to right क्या हो जाएगा? Atomic size decrease हो जाएगी. Reason क्या है इसका? Because shell तो same है ना, लेकिन atomic number बढ़ रहा है जिसकी वजह से nuclear pull बढ़ रहा है. Okay, nuclear charge बढ़ रहा है जो कि atoms electrons को अपनी तरफ pull करेगा. Okay, so this is what happens in the case of atomic size. Next हमने पढ़ा था metallic character. So as you're moving from top to bottom, हमारा जो है metallic nature increase होगा. Why? क्योंकि outermost shell का nucleus से distance बढ़ रहा है, जैसे कि we can say size of atom increase हो रहा है, उसकी वजह से outermost इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट हो सकता है. न्यूक्लियर पुल का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, और जितना जल्दी डोनेट हो जाएगा उतना ही मोर मेटालिक द एलिमेंट इज सेड टू बी. ओके, उसके बाद हमने देखा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक मेटालिक नेचर जो है डिक्रीज हो रहा है. व्हाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दे आर पुल्ड विथ मोर फोर्स इनटू दी और टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस, और उसकी वजह से वो डोनेट नहीं हो सकते हैं, एंड हेंस दी मेटालिक नेचर इज डिक्रीज्ड. ओके, तो आई होप कि आपको आज जो भी पढ़ा यू माइट हैव गॉट इट. अगर नहीं तो यू कुड लेट मी नो, एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लासेस जहां वी विल बी टेकिंग दीज चैप्टर्स फॉरवर्ड और बहुत कुछ आगे पढ़ने वाले. ओके, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करिए जल्दी, and like the video if you really liked it, share it, and we'll be meeting in the next class. tab tak ke liye keep studying, keep learning, all the very best. Thank you everyone, let's meet in the next class.